ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Namaskar students. Once again I am Devang sir brings you a video lecture of economics for chapter number 1, graphs in economics. Today I am going to teach you about different kind of technologies being used in the study of economics. First, importance of computer technology in the study of economics. Then, importance of internet technology in the study of economics. And last, use of data CD means compact disk in economics. See, why technology being used in study of economics? Because there are so many economic problems and so many kind of economic theories in economics, so that we have to use different diagram and graph to solve or to understand the economic problems or economic theories, and we have to represent or we have to provide this kind of study to people for understand. So we can use these kind of different technologies. Okay, now we study this kind of technology in briefly. Okay, now on your screen one genuine answer: importance of computer technology in the study of economics. Let's start. For the study of economics, we should aware about the word computer. We can various programs of a computer technology in our study, like that means we are going to understand about the importance by different points. There are 5 number of points to understand the importance of computer technology. Here is point number 1, presentation. Complicated economic information or data and difficult theories of economies can be made easy by expressing in a PowerPoint presentation. For example, the entire topic of budget can be highlighted in different 3 slides. One slide suggests us the meaning and uses and types of budget. Second slide suggests us the format or presentation of budget. And third will be suggest us the actual budget of a country or government. So here is the point number 1, presentation. यहाँ पे मैंने एक पॉइंट प्रेजेंटेशन जो दिया हुआ है आप समझिए। कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप होता है तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करके एक प्रोग्राम होता है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ऐसे डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। ईच एंड एवरी काइंड ऑफ बिजनेस, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ स्टडी में ये 3 प्रोग्राम जनरली यूज़ होते हैं, बराबर। उसमें प्रेजेंटेशन आपको बनाना है कोई भी टॉपिक के रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम के रिलेटेड, तो वो आप अच्छी तरीके से बना सकते हो। जैसे यहाँ पे एक बजट के लिए आपको याद होना चाहिए, लास्ट ईयर ये आपके सिलेबस में था बजट,
तो बजट का टॉपिक आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो. सो वी शुड गिव अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन थ्रू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. तो हियर इट इज़ द importance of computer technology in the study of economics. Okay, now point number 2, Excel worksheet. Economics deals with the lots of data. Researchers sometimes deal with data in thousands of observation. For instance, if we do a survey on number of items produced by small scale industries in India, we may get thousands of observations. Such data must be entered in an Excel sheet, and this sheet can process the data for any formula at only one click. For example, it can give us sum total, average, correlations, and much more. Excel sheets are almost an important tool for processing data in economics. See, what is Excel sheet? बराबर. The last sentence suggests what is Excel sheet. Excel sheets are almost an important tool for processing data in economics. हमको पता होना चाहिए. मैंने अभी डिस्कस किया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में. कंप्यूटर में ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके बगैर कंप्यूटर का जो वर्क है वो हो नहीं पाता है. मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ. एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जो मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसका स्टडी करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए बराबर उसका यूज़ होता है. एक्सेल के प्रॉपर कमांड होते हैं, प्रॉपर फार्मूलाज होती है जो आप इम्प्लीमेंट करते हो बराबर, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है. तो एक्सेल सीट भी एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जरिया है जिससे हम सर्वे भी कर सकते हैं बराबर. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आप देख सकते हो सेकंड लाइन में बराबर. इफ़ वी डू अ सर्वे ऑन नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, तो वो प्रॉपर वे में कर सकते हो आप. वो सर्वे करके पूरा एक एक्सेल सीट में डेटा डाल दो. जब भी किसी को कोई भी तरीके का डेटा चाहिए तो उनको उसमें से मिल जाएगा. तो ये हमको पता चलना चाहिए बराबर. तो ये तरीका होता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. तो हियर पॉइंट नंबर 2, एक्सेल वर्कशीट बीइंग यूज्ड, it is an important tool for processing data in economics. Okay, see point number 3, diagram and graph. There are several programs in a computer which help us to draw diagram and graphs, which we frequently use in economics. There are simple drawing tool in a Word file which can be used to draw simple freehand figures like a simple downward sloping or upward sloping demand or supply curve. सिंपल वर्ड का भी एक प्रोग्राम होता है, उसमें आप डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग वाले डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व इजीली ड्रॉ कर सकते हो. अब सोचिए फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, मैंने आगे भी एक वीडियो लेक्चर में आपको डायग्राम ग्राफ के बारे में बताया था. हम जो पैम्फलेट्स के अंदर भी आपको बताते हैं, इवन टेक्स्ट बुक में भी आप जो डायग्राम्स देखते हो तो वो इजीली कंप्यूटर के अंदर ड्राइंग टूल होता है बराबर. उसके लिए चार्ट का ऑप्शन होता है, चार्ट में से पूरा बराबर डायग्राम ग्राफ बन जाता है. तो इट इज़ क्वाइट यूजफुल फॉर द स्टडी इन इकोनॉमिक्स बाय ड्रॉ अ डायग्राम एंड ग्राफ थ्रू कंप्यूटर बराबर. यानी कंप्यूटर इट इज़ एन इम्पोर्टेंस टू गेट और टू ड्रॉ डायग्राम एंड ग्राफ इन द स्टडी of different kind of study of economics. Okay, storage tool बराबर. कंप्यूटर की लैंग्वेज में कोई भी डेटा को स्टोर करना या सेव करना, दैट्स वाई उसके लिए कीवर्ड यूज़ होता है स्टोरेज टूल. वी यूज़ plenty of study material in economics. Such material becomes useful in higher studies in economics for research.
We need space and carefulness to preserve such material in the form of physical notebooks. There is a fear of losing such material owing to moisture, pest, etc. But we can preserve all such material in a computer. Thus, study materials can be preserved with the help of computer technology. बराबर सिंपल सी बात है. If we store a data by physically, so there is the fear of losing such material owing to moisture, pest, etc. or rain. So we have to preserve all such material in computer. आप कंप्यूटर के अंदर उसको सेफली क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो. कोई भी डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, स्कैन कर लो, उसकी एक फ़ाइल बना दो, कंप्यूटर में स्टोर कर दो. और आज के कंप्यूटर लैपटॉप में तो वैसे भी बहुत सारी स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड होने लगी है, तो हम यूज़ कर सकते हैं. प्लस कुछ डेटा ऐसा हो सकते हैं जिसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हो, बराबर. तो ट्रांसफ़र करने के लिए ईमेल करके, बराबर, एक फैसिलिटी हमको मिलती है थ्रू इंटरनेट इन आर कंप्यूटर. तो कंप्यूटर को आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो. सो इन द स्टडी मटेरियल कैन बी प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. बराबर, स्टडी मटेरियल जो आपका होता है वो भी आप कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हो. PDF आपने स्टोर किया होगा, बराबर. तो स्टोरेज टूल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है. तो स्टोरेज टूल के नाम से हम एक इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं, बराबर. नाउ लास्ट point number 5, other tools. Statistical programs like SPSS, SESAM, eViews, SAIS, etc. are developed to do almost all type of data processing for lakhs of observations in minutes by entering the right formula. Research institutes buy such programs. These are very expensive. ये सब नाम है स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम, और ये सारे एडवांस प्रोग्राम है जिसमें स्टैटिस्टिकल डेटा जहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे स्टैटिस्टिकल डेटा का डेटा प्रोसेसिंग होता है, वहाँ पे ये, बराबर, एडवांस प्रोग्राम यूज़ होते हैं. सच प्रोग्राम्स आर वेरी एक्सपेंसिव. ये सारे प्रोग्राम थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन यूज़ करना है तो मिल भी जाते हैं. इसके जैसे सिमिलर काइंड ऑफ प्रोग्राम्स कुछ आप इंटरनेट से देखोगे, ढूंढोगे, सर्च करोगे तो आपको मिल भी जाएंगे. तो शायद मिल जाते हैं. तो इट इज़ क्वाइट यूज़फुल एज अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बराबर. यानी स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम, बराबर, भी यूज़ कर सकते हैं डेटा प्रोसेसिंग के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, बराबर. तो ये हुआ टोटल नंबर ऑफ 5 पॉइंट्स का एक आंसर, जिसको हम बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ 5 को लर्न करना है. तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है. हम याद रखेंगे पैड शो. हियर P means presentation, E means Excel worksheet, D means diagram and graphs, S means storage tools and O means other tools. बराबर. पॉइंट लर्न करेंगे आंसर लर्न करने के लिए पैड शो करके, तो पूरा हमको आंसर याद रह जाएगा, बराबर. तो हियर आई कंप्लीटेड इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. ओके, now one short answer, caution in using of computer technology. इम्पोर्टेंस तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कुछ कॉजन हमको ध्यान में रखना है while study through computer technology. Okay, 3 points are there. First point, computer is an aid in studying and it is not a study material by itself. It helps to make the process of studying easier and faster, but it does not replace the process of studying. जो कंप्यूटर है वो एक टूल है, एक एड है.
ये एक स्टडी मटेरियल नहीं है, स्टडी करने का एक एड है, ये हमको ध्यान रखना है, बराबर। इट डज नॉट रिप्लेस द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग, ये स्टडी करने का एक जरिया है, एक सोर्स है, ये स्टडी मटेरियल नहीं है, ये हमको ध्यान देना है, बराबर। तो इस तरीके से ये सारी डिटेल इसमें आती है। नाउ पॉइंट नंबर 2, इफ वी डू नॉट यूज द राइट कमांड इन कंप्यूटर वी मे एंड अप लूजिंग आवर मटेरियल। सेव करना भूल गए तो पूरा का पूरा डेटा लॉस हो जाएगा। तो कंप्यूटर के जो प्रॉपर कमांड्स है, राइट कमांड है, वो हमको पता होने चाहिए, हमको इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए ओके। These are the cautions. We have to remember this kind of caution while using computer technology. And point number 3, we may also end up getting incorrect graph and data processing if we do not know the correct formula on and command. Same diagram and graph जो ड्रॉ हो रहा है, तो डायग्राम एंड ग्राफ को भी अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो प्रॉपर फार्मूला कमांड पता नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ओके। तो हियर इज द कॉजन इन यूजिंग ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बराबर। ये छोटी सी डिटेल है जो हमको ध्यान में रखनी है। नाउ न्यू आंसर ऑन योर स्क्रीन, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके। पूरा एक टेबल दिखेगा स्क्रीन पे जिसमें हेडिंग है पर्पस एंड मैनर इन विच इंटरनेट हेल्प्स। टोटल नंबर ऑफ 6 पर्पसेस आएंगे इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के। फर्स्ट पॉइंट, ट्यूटोरियल। सम educational websites put PowerPoint presentation and study material along with worksheets on the open access link. बराबर, we can view such presentations as tutorial. We can view such presentation as tutorial. ट्यूटोरियल यानी पूरा स्टडी मटेरियल होता है उसको ट्यूटोरियल समझा जाता है। वेबसाइट्स पे ओपन एक्सेस लिंक मिलती है, एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन से बनाया गया होता है। तो इस तरीके से इंटरनेट से हमको ट्यूटोरियल मिलता है, पढ़ाई करने का एक पूरा जरिया मिलता है, बराबर। नाउ सेकंड पॉइंट, एक्टिव लर्निंग। सम वीडियोस ऑफ लेक्चर्स बाय एक्सपर्ट्स are put on open access sites by some educational institutes. Some institutes create live lectures available to students. अभी आप ये सारी डिटेल at present देख रहे हो, बराबर। We can register on this site and we can listen to a lecture on the net like we do in our classroom. For example, lectures by experts are available in economics and other subjects. जब जो ये आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहा है वो एक्टिव लर्निंग है, बराबर। लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा था तो आपके पास यही तरीका था, बराबर, और हमारे पास भी यही तरीका था, बराबर, आपको स्टडी प्रोवाइड करने का। तो एक्टिव लर्निंग इंटरनेट से प्रोवाइड होता है, बराबर। अभी हमारे पास तो क्या अपने क्लास की एक एप्लीकेशन है तो उसके ज़रिए हम पहुंचते हैं आप तक। मान लीजिए वो नहीं होता तो डायरेक्टली आपको यूट्यूब के ज़रिए उसके अंदर आपको अपने तरीके से सब्सक्राइब करके हम प्रोवाइड कर सकते थे, ओके। थर्ड पॉइंट, रीडिंग मटेरियल। न्यूमेरियस बुक्स आर अवेलेबल ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर रीडिंग. Some good research articles, copies of journals, etc. are also available for reading. Some articles, books and journals can be accessed by paying some annual fees on those websites. These materials are called e-books or e-journals. बराबर, आपने जो टेक्स्ट बुक अपनी डाउनलोड की है, बराबर, फ्रॉम इंटरनेट और फ्रॉम वेबसाइट,
तो वो बुक्स आपके लिए ई बुक्स बन गई, बराबर। वैसे जर्नल्स आती है तो वो भी आप डाउनलोड करते हो तो वो भी ई जर्नल बन जाती है। तो इस तरीके से इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। वी कैन अंडरस्टैंड नाउ importance of internet technology in study of economics. So tutorial, active learning and reading material, these 3 points, बराबर, initially these 3 points we can understand now. अभी जो आपको जो स्टडी मिल रहा है थ्रू इंटरनेट, ये आपको यहाँ पे बराबर पढ़ाई में भी दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ point or purpose information. By merely searching we can get information on universities offering degrees in economics or any other information about any subject, बराबर, ये हमको ध्यान रखना है। इंफॉर्मेशन आपको लेनी है। There are so many search engines in internet are available. Google is मोस्ट फेमस। हमको इकोनॉमिक्स की डिग्री जहाँ से मिलती है वो यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन हमको निकालना है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन भी दूसरे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर निकालनी है तो हम सर्च करके निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो ये हमको ध्यान रखना है। मिससेलेनियस, we can get quotes by economists, names of reference books etc. also on internet by using the search engine. इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, लास्ट ईयर आपने पढ़ा था एडम स्मिथ, रॉबिन्स, मार्शल, तो ये इकोनॉमिक्स के रिलेटेड आपको कोई रेफरेंस बुक या फिर उनके जो कुछ कोड्स आपको नेसेसरली स्टडी करने हैं तो आप इंटरनेट के थ्रू वो निकाल सकते हैं या फिर सर्च करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, बराबर। तो इस तरीके से इंटरनेट का यूज़ होता है, इंटरनेट यूज़फुल होता है, बराबर। एंड लास्ट पॉइंट, डेटा, बराबर। कोई भी डेटा आपको सर्च करना है या फिर आपको चाहिए तो आपको इंटरनेट का यूज़ करके वो डेटा मिल सकता है, बराबर। ये हमको ध्यान रखना है। Economics uses a lot of secondary data. For instance, we use data on budget of a government, banking, agriculture production, value of exports and imports, poverty, employment, industrial production, and many others. These data can be accessed from authentic websites. For example, RBI, authentic data site on banking in India. For export and import is the official website of Ministry of Commerce and Industries. Some organizations and agencies functioning at national level also collect, publish as well as put data on websites. For example, CSO, NSSO, UNO, CMIE, IMF, World Bank, etc. आपको डेटा कलेक्ट करना है, बराबर। तो उसके रिलायबल सोर्सेज आपको इंटरनेट से मिलेंगे। जैसे इंडिया में RBI इज़ द ऑथेंटिक डेटा साइट ऑन बैंकिंग, बराबर। वैसे एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट के लिए आपको जानना है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बराबर। ये तो गवर्नमेंट की बात हुई, गवर्नमेंट ऐसे डेटा प्रोवाइड करती है थ्रू वेबसाइट। लेकिन कुछ ऐसी इंस्टीट्यूट्स भी है इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वाली या नेशनल लेवल पे काम करने वाली जो अपनी वेबसाइट पे दिस काइंड ऑफ डेटा पब्लिश करती है। जैसे CSO है, NSSO है, UNO, WHO, CMIE, IMF, वर्ल्ड बैंक एट्सेट्रा। तो इस तरीके से काम होता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 6 पॉइंट कंप्लीट किए मैंने, showing the importance of internet technology in the study of economics. Okay, so total number of 6 point इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस जो है
उसको लर्न करने के लिए हम याद रखेंगे, पॉइंट्स लर्न करने के लिए हम याद रखेंगे टर्म डेटा। टर्म डेटा स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। T मीन्स ट्यूटोरियल, A मीन्स एक्टिव लर्निंग, R मीन्स रीडिंग मटेरियल, I मीन्स इंफॉर्मेशन, M मीन्स मिसलेनियस, D मीन्स डेटा। सो हम याद रखेंगे टर्म डेटा, बराबर। फॉर लर्न दिस आंसर इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। ओके, नाउ on your screen a short answer, caution in using of internet technology। टोटल नंबर ऑफ 4 पॉइंट्स हम याद रखेंगे। लाइक कंप्यूटर, फर्स्ट पॉइंट, लाइक कंप्यूटर इंटरनेट इज ऑल्सो ओनली अ टूल, इट कैन नॉट रिप्लेस बुक्स एंड टीचर्स और आवर ओन थिंकिंग एंड रीजनिंग। बराबर, कंप्यूटर की तरह इंटरनेट भी एक टूल है, बराबर। वो कभी टीचर नहीं बन सकता है, बराबर। वो कभी बुक्स का भी, बराबर, जो प्लेस होता है, स्थान होता है, वो नहीं ले सकता है, बराबर। इट्स और ओन थिंकिंग एंड रीजनिंग, ये एक जरिया है, ये एक यूज़ करने का, बराबर, टूल है। इंटरनेट ऑल्सो बीइंग अ टूल लाइक कंप्यूटर, बराबर। सेकेंड नंबर, a lot of substandard material, irrelevant information, misleading information, plagiarized articles are found on internet, बराबर। तो ये हमको ध्यान रखना है, प्लेगिराइज वो भी मिसलीडिंग ही होता है, वही हमको ध्यान रखना है। इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो हमको देखना है, हमको सोचना है कि भाई ये सबस्टैंडर्ड मटेरियल है, या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, या मिसलीडिंग और प्लेगिराइज्ड आर्टिकल है। तो ये हमको ध्यान रखना है, बिकॉज वी आर स्टडी नाउ कॉजन इन यूजिंग ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। थर्ड पॉइंट, वी मस्ट अवॉइड यूजिंग दोज, readers must have the wisdom of identifying the authentic material on internet. And fourth point, only authentic websites must be referred to, otherwise we may end up getting misled, बराबर। कुछ भी हो जाए, इंटरनेट से हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, हम डाउनलोड करते हैं, वो मिसलीड नहीं होनी चाहिए, बराबर, इररिलेवेंट नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपर होनी चाहिए, वो हमको डिसाइड करना है। प्लस हैकिंग वायरस का भी जो प्रॉब्लम है वो भी हमको ध्यान में रखना है, बराबर। तो हियर आई कंप्लीटेड द कॉजन इन यूजिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी। ओके, नाउ ऑन योर स्क्रीन न्यू आंसर, न्यू जेन्युइन आंसर, uses of data CDs means compact disk in economics. Okay, shall we start now? Some authorities and agencies like laboratories, research centers, government agencies, etc. involve in collection and publication of information and data pertaining to macroeconomics indicators, put huge data content in compact disk, such a disk being called data CD. Okay, and sell those for researchers and educational institutes. Such CDs are used by educational institutions, research institutes, etc. यानी लेबोरेटरीज, रिसर्च सेंटर, गवर्नमेंट एजेंसीज, ये अलग अलग टाइप की इंस्टीट्यूट्स जो होती है, वो अपना इन्वॉल्व एंड कलेक्ट डेटा जो होता है उसको ये एक इंफॉर्मेशन बनाते हैं, उसके वो सारी इंफॉर्मेशन का एक डेटा बना के उसको सीडी में सेव करते हैं और वो सीडी मार्केट में बेचने के लिए रखते हैं। दिस काइंड ऑफ सीडी वी कैन से डेटा सीडी, हम उसको डेटा सीडी बोलते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वो सीडीज़ परचेज करते हैं, बराबर। और कुछ रिसर्चर्स होते हैं, एजुकेशनिस्ट होते हैं, वो भी ये सीडीज़ क्या करते हैं, मार्केट में बेचने के लिए रखते हैं, अपना नॉलेज उसके अंदर प्रोवाइड करके। तो सच अ सीडी
we can say this kind of city is data city. Okay, now on your screen some such data cities frequently used in economics are, यानी कुछ अलग अलग टाइप की जो डेटा सिटीज़ होती है जिसका यहाँ पे नाम दिया गया है. नंबर 1, सिटी ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, सिटी ऑफ NSSO. NSSO मीन्स नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. NSSO इंडिया में ज़्यादातर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड स्टडी करता है. बराबर. पॉइंट 5, सिटी ऑफ डेटा पर्टेनिंग टू एनी मिनिस्ट्री इन इंडिया विच आर प्रोवाइडेड बाय स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़. बराबर. अलग अलग टाइप की मिनिस्ट्री होती है, वो अपने डेटा को प्रोवाइड करने के लिए सीरीज़ बराबर मार्केट में बेचने के लिए रखते हैं. एंड द पॉइंट नंबर 6, सम एजेंसीज लाइक CMIE, फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ऑल्सो क्रिएट डेटा सॉफ्टवेयर which can be purchased only by research institutes and corporations as these are very expensive. CMIE जैसी इंस्टीट्यूट जो होती है, एजेंसी होती है, वो सॉफ्टवेयर्स बनाती है और वो सॉफ्टवेयर्स वो डेटा सिटी में प्रोवाइड करके मार्केट में सेल करते हैं. बराबर. और हम लोग वो परचेस करते हैं. दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स और दिस काइंड ऑफ सीडीज़ आर वेरी एक्सपेंसिव. बराबर. तो ये टाइप की सीडीज़ इकोनॉमिक्स में स्टडी करने के लिए मार्केट में मिलती है. बराबर. दिस ऑल काइंड ऑफ सीडीज बीइंग कॉल्ड डेटा सीडी. एंड इन लास्ट, डिफिकल्टी इन यूजिंग सीडीज. टोटल नंबर ऑफ 2 पॉइंट्स आर देयर. हमारे पास सीडी है लेकिन सीडी यूज़ करने का तरीका हमको पता नहीं है या फिर प्रॉपर वे में हम जानते नहीं हैं, तो फिर ये हमको ध्यान रखना पड़ता है. बराबर. टोटल नंबर ऑफ 2 पॉइंट्स. Point number 1, since the data cities and softwares contain a huge size of data, तो ये हमको ध्यान रखना है. Second point, these become complicated to use. There are several seats in a city and one must have the knowledge regarding searching the relevant data sheet and get the relevant data. बराबर. Point है difficulty in using CDs. बराबर. यानी जो सीडी यूज़ करने में डिफ़िकल्टी होती है उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है. सो हियर आई ऑल्सो कंप्लीटेड द टोटल आंसर ऑफ रिलेटेड टू डेटा सीडी. डेटा सीडी क्या होता है, कौन सी डेटा सीडी मार्केट में मिलती है और डेटा सीडी को यूज़ करते वक्त कौन सी डिफ़िकल्टी आती है, वो हमको ध्यान में रखना है. डिफ़िकल्टी को आप कॉजन भी बोल सकते हो एज वी स्टडी. बराबर. आगे भी हमने स्टडी किया उस तरीके से. बराबर. तो यहाँ पे ये भी टोटल नंबर ऑफ 3 टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी के आंसर भी कंप्लीट हो गए. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड डेटा स्टडी. यानी यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है, ये हमको ध्यान रखना है. बराबर. ये लेक्चर में इतना ही रहेगा. अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम आगे नया चैप्टर पढ़ेंगे. बराबर. जय श्री कृष्ण.